السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، آواز آ رہی ہے؟ جی شیخ، شروع کریں؟ جی شیخ، بسم اللہ کی انشاءاللہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللکافرین عذاب مہین۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، اور ہم نے ان کے بعد ان کے پیچھے رسولوں کو بھیجا، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں دی تھی، اور ہم نے ان کی تائید روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کی تھی۔ کیا پس جب کبھی آئے تمہارے پاس کوئی رسول اس چیز کے ساتھ جسے جو تمہارے نفوس کے موافق نہ ہو تو تم تکبر کر لیے، اور تم نے ایک جماعت کو جھٹلایا، اور تم ایک جماعت کو قتل کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا ہمارے دل بند ہیں، بلکہ اللہ نے ان کی کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، پس بہت کم ہی وہ ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے کوئی کتاب آئی جو اس کی تصدیق کرنے والی تھی جو ان کے ساتھ ہے، اور وہ اس سے پہلے فتح طلب کرتے تھے کافروں پر جب وہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے نہیں پہچانا اور اس کا انکار کیا، کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کیا ہی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، یہ کہ انہوں نے انکار کیا اس چیز کا جسے اللہ نے نازل کیا، حسد کرتے ہوئے یہ کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے فضل کو نازل کرے، پس وہ غضب پر غضب کو لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ برادران اسلام اور خواتین، پچھلے آیات میں اللہ عز و جل بنو اسرائیل کے احوال کو بیان کرتے ہوئے ان کی عہد شکنی اور ان کی اللہ عز و جل کے احکام کی نافرمانی، اور اس طریقے سے بنو اسرائیل کے تعلق سے، خاص طور سے یہود کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائی گئی۔ یہاں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی اس کا نام ہے تورات، اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے ساتھ صحیفے دیے گئے تھے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی،
اور پھر موسیٰ کے بعد ان کے پیچھے اور رسول بھی بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں دی تھی، اور ہم نے ان کی تائید روح القدس یعنی جبرائیل کے ذریعے کی تھی۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد اور رسول، اور پھر خاص طور سے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتلانا مقصود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں تم جھٹلا رہے ہو اور جن پر تم ایمان نہیں لا رہے ہو، تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو ان سے پہلے انبیاء اور رسول بھیجے گئے تھے۔ جب موسیٰ پر تمہارا ایمان تھا اور عیسیٰ پر تمہارا ایمان ہے، تو پھر اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تم ایمان لے آؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ یہاں اللہ عز و جل نے جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس کہا، گویا ہم نے عیسیٰ بن مریم کی تائید کی تھی جبرائیل امین کے ذریعے سے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے بنو اسرائیل کی ایک خصلت کا ذکر کیا کہ جب کبھی رسول ایسی بات کو لے کر آتے جو ان کی طبیعت کے موافق نہ ہو، ان کے مزاج کے موافق نہ ہو، تو فوراً وہ اس کا انکار کرتے تھے اور اس کے سامنے تکبر کرتے تھے۔ تو کسی چیز پر تکبر کرنے کا مطلب یہ ہے اسے حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو اس سے بالا تر سمجھنا، یعنی ان آیات کے ساتھ وہ تکبر کرتے تھے، اور انبیاء میں سے ایک فریق کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک فریق کو انہوں نے قتل کیا۔ تو گیا جنہیں قتل کیا ان میں زکریا اور یحییٰ علیہ السلام ہے، اور جنہیں جھٹلایا ان میں عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو گیا یہاں پر بنی اسرائیل خاص طور سے یہود کی عادت ذمیمہ کو بیان کیا گیا کہ ہر اس آیت کا انکار کرتے تھے جو ان کی طبیعت کے موافق نہ ہوتی تھی، اور پھر رسولوں کے ساتھ ان کا بڑا ناروا سلوک رہا۔ رسولوں کو جھٹلانا اور قتل کرنا یہ ان کی عادت تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل بند ہیں۔ انبیاء کرام جب ان کے پاس دعوت پیش کرتے تھے اور اللہ کی آیات کو سناتے تو کہتے تھے ہمارے دل غلاف میں ہے، ہمارے دل بند ہے۔ تو اللہ عز و جل نے اس کے جواب میں کہا کہ تمہارا یہ کہنا کہ ہمارے دل بند ہیں، یعنی تمہاری باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، یہ کوئی بہادری کی بات نہیں ہے، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ حقیقت تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ نے تمہیں توفیق سے محروم کر دیا، تم پر لعنتیں نازل کی ہیں، اب بہت ہی کم وہ ایمان لائیں گے، مطلب کہ ان میں سے ایمان لانے والے بہت ہی کم لوگ ہوں گے۔ اب اس کے بعد اللہ عز و جل نے ان یہود کی ایک اور بات بتلائی کہ جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے یہ کتاب آئی، یعنی قرآن مجید، جو تصدیق کر رہی تھی اس چیز کی جو ان کے ساتھ یعنی تورات کی، تو قرآن مجید کے بہت سارے احکام ایسے ہیں جو تورات کے احکام کی تصدیق کرتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ قرآن مجید اگلی ساری کتابوں کا خلاصہ ہے۔ اگلی ساری کتابوں میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان کا خلاصہ قرآن مجید میں ہے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جب یہ کتاب ان کے پاس آئی یعنی قرآن مجید، اور یہ کتاب ان کی کتابوں کی تصدیق بھی کر رہی ہے، تو ان کتابوں میں جو احکام ہیں ان کی تصدیق کر رہی ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ آگے بڑھ چڑھ کر اس کتاب پر ایمان لاتے، اور خاص طور سے وہ اپنے جو پڑوس تھے یعنی اوس و خزرج، ان سے کہا کرتے تھے جلدی ایک نبی آنے والا ہے اور ہم اس کے ساتھ مل کر تم سے لڑائی کریں گے اور تم پر فتح حاصل کریں گے۔ گویا یہ دو باتیں، ایک تو قرآن مجید کا ان کی کتابوں کی تصدیق کرنا، اور دوسری بات ان کا خود اپنے جو مدینے کے جو باشندے تھے یعنی اوس و خزرج، ان سے یہ کہنا کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس کے ساتھ مل کر اس پر ایمان لا کر ہم تم پر فتح حاصل کریں گے
इन दोनों बातों का तकाजा ये था कि उस किताब पर ईमान लाते। लेकिन हुआ ये कि जब ये रसूल उनके पास आया इस किताब को लेकर तो पहचानने से इनकार कर दिया, जबकि वो खुद इस रसूल का औस व खजरत के पास तस्करा किया करते थे। रसूल को पहचानने से इनकार कर दिए और कहा कि हम जिस रसूल का तस्करा कर रहे थे उसका ताल्लुक बनु इस्माइल से नहीं, उसका ताल्लुक बनु इसहाक से है, क्योंकि हम लोग इसहाक के खानदान से हैं। उन्होंने रसूल को पहचानने से इनकार किया और रसूल का कुफ्र किया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे काफिरों पर अल्लाह ताला की लानत हो। तो गोया उनका रसूल की आमद से पहले ये कहना कि एक रसूल मबूस होने वाला है और हम उस पर ईमान लाकर ऐ मदीने के बाशिंदों तुम पर फतह हासिल करेंगे, फिर कुरान मजीद का उनकी किताबों की तस्दीक करना, ये दो बातें इस बात के मुतकाजी थी कि वो कुरान पर ईमान लाते, रसूल पर ईमान लाते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? इसलिए कि उन्हें इस बात से हसद हुई, इस बात से जलन हुई कि ये नबी बनु इस्माइल में क्यों भेजा गया, बनु इसहाक में क्यों नहीं भेजा गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो लड़के इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम थे और इन दोनों लड़कों की औलाद में अंबिया और रसूल भेजे गए। बनु इसराइल का ताल्लुक बनु इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से था। तो इन्होंने जब देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाय इसहाक अलैहिस्सलाम के इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद से हैं, झट से उन्होंने इसका इनकार किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया बिइसमश्तरौ बिही अनफुसहुम अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाह, क्या ही बुरी है वो चीज जिसके बदले उन्होंने अपने आप को बेच डाला। बुरी बात यह है कि उन्होंने इनकार किया उस चीज का जिसे अल्लाह ने नाजिल किया। वह जिसे अल्लाह ने नाजिल किया उसके साथ उसका इनकार करना, तो ये वो चीज है। और इसके जरिए उन्होंने जो है अपने हसद और किब्र की वजह से जो इनकार किया, बड़ी बुरी चीज है ये कि हसद करते हुए ये कि अल्लाह अपने फजल को अपने बंदों में से इस पर नाजिल करे। तो उन्हें हसद इस बात पर हुई कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को बनु इसहाक के बजाय बनु इस्माइल में क्यों भेजा। तो कह रहे हैं, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हसद और जलन की वजह से उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफ्र किया और आप पर ईमान नहीं लाए, जबकि अल्लाह ताला अपने फजल को जिस पर चाहता है नाजिल करता है, उस पर किसी का इख्तियार नहीं चलता है। वबाउ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, गजब पर गजब को लेकर लौटे। एक तो गजब ये है कि उन्होंने अल्लाह की तक़सीम का इनकार किया, दूसरा गजब ये है कि उन्होंने कि वो हसद और जलन में गिरफ्तार हुए, और तीसरा गजब ये है कि उन्होंने रसूल और कुरान मजीद के साथ कुफ्र किया। यूं गजब पर गजब को लेकर लौटे और काफिरों के लिए रुसवा कुन अज़ाब है। तो यहाँ पर ये बतलाया गया कि यहूद किस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते थे, तो उसकी वजह बयान की गई। उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया कि वइज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाह, और जब उनसे कहा जाता उस पर ईमान लाओ जिसे अल्लाह ने नाजिल किया, तो कहते नुमिनु बिमा उन्ज़िला अलैना, हम ईमान लाएंगे उस पर जो हम पर नाजिल की गई है, तौरात पर। वयकफुरून बिमा वराअहु, और वो इनकार करते थे उसका जो उसके पीछे थी, यानी कुरान मजीद का इनकार कर रहे थे। वहुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़ुन लिमा माअहुम, हालांकि कुरान मजीद किताब हक है, तस्दीक करने वाली है उस चीज की जो उनके साथ यानी तौरात है। कुल वलिमा तक़तुलून अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्ल इन कुन्तुम मुमिनीन, बस किस लिए तुम इससे पहले अल्लाह के नबियों को कत्ल कर रहे थे अगर तुम मोमिन हो, या अगर तुम मोमिन थे। तो इनसे कहा जा रहा है कि वो ये जब से कुरान मजीद पर ईमान लाओ तो कहते नहीं हम तौरात पर ईमान रखते हैं,
हम पर जो नाजिल की गई उस पर हम ईमान रखते हैं। तो उनसे कहा गया एक तो ये है कुरान मजीद तौरात की तस्दीक कर रही है, और दूसरी बात ये है अगर तुम तौरात पर ईमान लाने में बरहक हो तो फिर होना ये चाहिए था कि अगले अंबिया को तुम कत्ल नहीं करते, लेकिन तुम इस जुर्म में गिरफ्तार हो चुका हो कि तुम और तुम्हारे आबा के अगले अंबिया को तुम, तो गया तौरात के साथ जो तुम्हारा ईमान का दावा है ये दावा भी सही नहीं है। अब इसी दावे को जुटलाने के लिए एक बात और कही गई, वलक़द जाअकुम मूसा बिल बय्यिनात, और मूसा तुम्हारे पास खुली निशानियां लेकर आए। सुम्मा तखस्तुमुल इज्ला मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून, फिर तुमने उनके बाद बछड़े को माबूद बना लिया और तुम जालिम थे। यानी अगर तौरात पर तुम्हारा ईमान था जिसका तुम दावा कर रहे हो, तो फिर तुमने मूसा के बाद जब मूसा तूर को गए तो मूसा के बाद तुमने बछड़े को माबूद क्यों बना लिया? इसका मतलब यह है कि तुम अपने दावे में झूठे हो, सच्चे नहीं। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम अत-तूर, जब हमने तुमसे अहद लिया और तुम्हारे ऊपर तूर पहाड़ को ला खड़ा किया। खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वस्मऊ, ले लो उस चीज को जो हमने तुम्हें दिया है मजबूती के साथ और सुनो। उन्होंने कहा समिअना व असैना, हमने सुना और नाफरमानी की। वशरिबू फी क़ुलूबिहिमुल इज्र बिकुफ्रिहिम, और वो अपने दिलों में बचने की मोहब्बत पिला दिए गए थे अपने कुफ्र की वजह से। कुल बिअसमा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मुमिनीन, क्या ही बुरी बात है जिसका तुम्हारा ईमान तुम्हें हुक्म देता है अगर तुम मोमिन हो। यहाँ पर एक और मीसाक और वादे का जिक्र किया गया कि जब उनसे एक बार जो है एक अहद लिया जा रहा था तो वो अहद इकरार कर नहीं रहे थे, लेकिन जब उनके ऊपर जो है पहाड़ को लाकर खड़ा किया गया तो फौरन और कहा कि तुम जो है जो तौरात तुम्हें दी जा रही है मजबूती के साथ थामो और जो बात कही जा रही है उससे गौर से सुनो, अमल करो। तो पहले तो मान लिए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा हाँ हमने सुना और हमने नाफरमानी की। हम तो तौरात को पढ़ रहे हैं लेकिन अहकाम पर अमल नहीं करेंगे। इसकी वजह यह बताई गई कि इनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई थी कि बछड़े की मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार थे कि उसकी वो इबादत करने लगे थे। तो वह उन पर रद्द किया जा रहा है कि तुम जो ये दावा किए कि हम उस किताब पर ईमान लाएंगे जो हम पर नाजिल की गई है, तो फिर ये बतलाओ कि क्या तुम्हारा ईमान तुम्हें इस बात का हुक्म दे रहा था कि तुम अंबिया को कत्ल करो, तुम समिअना व असैना कहो और तुम बछड़े की इबादत करो? तो गया तुम अपने ईमान में, ईमान के दावे में सच्चे नहीं हो। अब इसके बाद यहूद को मुबाहले की दावत दी गई, जैसा कि नजरान के ईसाइयों को भी मुबाहले की दावत दी गई थी, और उनसे कहा गया अगर तुम अपने दावा में सच्चे हो कि अल्लाह के चहीते बंदे हो, अल्लाह के महबूब बंदे हो, आग बस चंद रोज के लिए तुम्हें छुएगी और तुम ही शाबुल्लाह मुख्तार अल्लाह के पसंदीदा बंदे हो, तो फिर एक काम करो, मौत की तुम तमन्ना करो। उनके बारे में कहा गया कि ये कभी मौत की तमन्ना करने वाले हैं, मौत से लोग डरते हैं क्योंकि दुनिया की जिंदगी उनके लिए प्यारी है। कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाह खालिसतम मिन दुनिन नास फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन, कह दीजिए अगर तुम्हारे लिए आखिरत का घर अल्लाह के पास खालिस है और लोगों के अलावा, तुम जो दावा करते हो कि आखिरत हमारे लिए है, हम ही जन्नत में जाएंगे, तो तुम मौत की तमन्ना करो अगर तुम मोमिन हो। वला ये तमन्ना अबदम बिमा कद्दमत ऐदीहिम, और वो हरगिज इसकी तमन्ना नहीं करेंगे उस वजह से जो उनके हाथों ने आगे भेजा है। यानी उनके जो करतूत हैं, इस करतूत की वजह से कभी इसकी वो तमन्ना नहीं करेंगे, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वला तजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हया, और अलबत्ता जरूर आप उन्हें सारे लोगों में सबसे ज्यादा
जिंदगी की ख्वाहिशमंद पाओगे। यानी सारे लोगों में सबसे ज्यादा दुनिया की रगबत रखने वाले कोई हैं तो यहूद हैं। बल्कि उमिनल्लज़ीन अशरकू, मुशरिकीन से भी ज्यादा, यवद्दु अहदुहुम, उनमें से एक के चाहता है, लौ युअम्मरु अल्फ सना, काश उसे 1000 साल की उम्र दी जाए। वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाब अन युअम्मर, मगर ये अजाब दिया जाना उससे अजाब से हटाने वाला नहीं है, और अल्लाह उनके अमाल को बखूबी देख रहा है। तो इसमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया कि यहूद के अंदर जो खराबियां पैदा हुई है, ये खराबियां दर हकीकत दुनियावी मोहब्बत की वजह से, मादियत में इंहिमाक की वजह से, मादियत में और आयश व आराम में गर्क की वजह से ये सारी की सारी खराबियां उनमें पैदा हुई। तो कहा गया कि अगर तुम वाकईतन ये अपने दावे में सच्चे हो, आखिरत तुम्हारे लिए है, जन्नत तुम्हारे लिए है, तुम ही अल्लाह के महबूब बंदे हो, तो अल्लाह से मिलने की तमन्ना क्यों नहीं करते, मौत की तमन्ना क्यों नहीं करते। फिर ये कहा गया कि ये लोग हरगिज मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग सारे लोगों से ज्यादा, बल्कि मुश्रिकों से भी ज्यादा दुनिया को चाहने वाले हैं। और उनको एक हकीकत बतला दी गई कि तुम्हारी उम्र अगर 1000 साल भी कर दी जाए तो तब भी तुम्हें इसके बाद मौत आनी है, और फिर अल्लाह के अजाब से ये चीज तुम्हें टाल नहीं सकती है। अल्लाह के अजाब से बचना है तो उसके लिए लंबी उम्र या कम उम्र नहीं, बल्कि अल्लाह के अजाब से बचना है तो उसके लिए ईमान और अमल सालेह की जरूरत है। ईमान और अमल सालेह के जरिए से इंसान अपने आप को अल्लाह ताला के अजाब से महफूज रख सकता है। तो इन आयात में, जैसा कि इससे पहले की आयात में यहूद की खसलतों का और उनकी आदतों का बयान किया गया था, तो इन आयात में भी यहूद की खसलतों और उनकी आदतों को बयान किया गया, और ख़ास तौर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तकज़ीब कर रहे थे तो उस पर रद्द किया गया। अव्वलन ये कहा गया कि कुरान मजीद जो तुम्हारे सामने है ये खुद तौरात की तस्दीक कर रही है। अगर तुम्हारा ईमान तौरात पर है तो होना ये चाहिए तुम कुरान मजीद पर ईमान लाओ, क्योंकि कुरान मजीद तौरात की तस्दीक करती है। तौरात के जो अहकाम है उन अहकाम की कुरान मजीद तस्दीक कर रही है। फिर दूसरी बात ये है कि ये वो नबी जिसको तुम झुटला रहे हो, इस नबी के आने की तुम पहले तमन्ना भी करते थे, और मदीने के बाशिंदों को धमकी देते थे कि जल्द ही एक नबी आने वाला है, उसके साथ मिलकर हम तुमसे क़िताल करेंगे और तुम पर फतह हासिल करेंगे। जब नबी आ चुका है तो फिर क्यों इनकार कर रहे हैं। कहा गया इसके इनकार की वजह ये है भी बनु इस्माइल से है, बनु इसहाक से क्यों नहीं है। तो गया इन्हें कब से इख्तियार मिल गया कि अल्लाह ताला पर अपना हुक्म चलाए कि अल्लाह अपने फजल किस पर नाजिल करे या किस पर नाजिल न करे। अल्लाहु अअलम हैसु यजअलु रिसालतह, अल्लाह जानता है कि किसको रसूल बनाना है और किसे रसूल बनाना नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा में थे और इस तरीके से घाटियों में जाकर दावत व तबलीग करते थे, मुख्तलिफ कबाइल पर अपने आप को पेश करते थे, तो एक मीना की रातों में से एक रात ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि घाटी के पीछे से कुछ सरसराहट आ रही है और कुछ आवाजें आ रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा क्यों नहीं मैं इनके सामने जाकर दावत पेश करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास पहुंचे। वो कुल 6 आदमी थे जो मदीने से हज के लिए आए थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने दावत रखी, कुरान मजीद की तिलावत की, तौहीद को बयान किया, तो आपस में कहने लगे ये वही नबी लग रहा है जिसकी धमकी हमें यहूद दिया करते हैं। तो क्यों ऐसा न हो कि यहूद से पहले हम इस पर ईमान ले आए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए और कहा कि हमें उम्मीद है कि हमारे 2 कबीले के दरमियान, औस और खज़रज के दरमियान जो मुसलसल लड़ाई चल रही है, अल्लाह ताला आपके जरिए से इनके दिलों में मोहब्बत डाल देगा। अब ये 6 अफराद जो इस्लाम कबूल किए, फिर इसके बाद दूसरे साल
اور بھی افراد 12 افراد آئے, उसके बाद जो है 70 अफराद आए. तो इस तरीके से इस्लाम मदीने में इस्लामी हुकूमत की जो बुनियाद पड़ी, तो उसके असल सबब ये 6 आदमी थे. तो कहने का मकसद ये है कि उस जमाने में ये बात फैली हुई थी, आम सी बात थी कि जल्द ही एक नबी मबूस होने वाला है, और यहूद इसका तस्करा बराबर लोगों से किया करते थे. तो गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकार की कोई जवाब नहीं है, खुद तुम इसका तस्करा कर रहे थे. और दूसरी बात यह है कि ये कुरान तुम्हारी किताबों की तस्दीक कर रही है. फिर उसके बाद उन पर रद्द किया गया, हकीकत में तुम अपनी किताब पर भी ईमान लाने वाले नहीं हो. आखिरतन अगर तुम अपनी किताब पर ईमान लाते तो कुरान पर ईमान लाते, और अगर तुम अपने किताब पर ईमान लाने वाले होते तो अपने अंबिया को कत्ल नहीं करते, और इस तरीके से बछड़े की इबादत नहीं करते. और फिर ये भी कहा गया कि ये लोग, इन लोगों में जो खराबी है, खराबी की वजह यह है कि दुनिया की मोहब्बत में मुनगमिस हो चुके हैं, दुनिया की मोहब्बत में डूब चुके हैं. तो लिहाजा इसी वजह से ये खराबियां पैदा हुई है. और उनसे कहा गया कि अगर तुम ये कहते हो कि आखिरत तुम्हारे लिए ही है, जन्नत तुम्हारे लिए है, फिर मौत की तमन्ना करो. और आखिर में एक आम नसीहत बताई गई कि देखो, किसी की जिंदगी लंबी हो या मुख्तसर, ये अहम नहीं है. अहम यह है कि ईमान और अमल साले से उसकी जिंदगी मुज़य्यन है या मुज़य्यन नहीं है. उम्र कितनी भी बढ़ जाए, आखिर एक न एक दिन इस दुनिया से तुमको रवाना होना है. और तवील उम्री इंसान को अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सकती. अजाब से बचाने वाली चीज एक ही है, वो है ईमान और अमल साले. तो हमें यहूद का तज़किरा करते हुए इस दिन में बहुत सारी मुफीद बातें बताई गई. तो एक तरफ हम यहूद की खसलतों को पहचाने, और दूसरी जानिब हम अपने आप को इन सारी चीज़ों से महफूज रखें. अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि जो कुछ हमने पढ़ा है, सुना है, अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इस किताब को क़यामत के रोज़ हमारे लिए शफाअत का ज़रिया बनाए, और हमारे खिलाफ हुज्जत न बनाए. सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा. आप में से किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए. अस्सलाम वालेकुम शेख. अलैकुम अस्सलाम. शेख, ये आमाल सालेहात रोज हमसे कई मरतबा उसका हक अदा नहीं होता, और बहुत सारे गलतियां करते हैं. ईमान तो है मगर आमाल साल में बहुत कमजोरियां हैं, तो क्या किया? जी, देखिए, ईमान में मजबूती अमल साले के जरिए बनती है. हकीकत ये है कि ईमान में वो मजबूती नहीं है जो मजबूती होनी चाहिए. अल्हम्दुलिल्लाह ईमान तो है, लेकिन ईमान में मजबूती, इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ईमान का जिक्र करते हुए सहाबा के ईमान को मेयार करार दिया. फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ. अगर वो ईमान लाए जैसा कि सहाबा तुम ईमान लाए हो, तो हिदायत याफ्ता होगी. वह ईमान में मजबूती होना, ईमान में मजबूती ये है कि जिस तरीके से इंसान अपने आप पर यकीन रखता है कि मैं फला हूँ, फला का बेटा हूँ, यह है कि ये दिन है, यह है कि ये रात है, उससे कहीं ज्यादा इंसान अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर